Good morning, class. Today we will start with your chapter Discovering Tut. Discovering Tut, the saga continues, is a chapter which gives us an in depth insight of Tutankhamun, the last ruler of the powerful Pharaoh dynasty in Egypt. So, it the chapter Discovering Tut, the saga continues. It gives us the deeper understanding of the last ruler, Tutankhamun. He was the powerful Pharaoh dynasty ruler in Egypt. He was a teenager when he died, and his death was a mystery. He was almost in his teenage when his death happened, and his death was a mystery for all. No one could understand how he died. Some speculated that he was murdered, some thought that he was murdered. He ruled in Egypt and its empire for centuries. In 1922, his tomb was discovered by Howard Carter, a British archaeologist, found his tomb in 1922. After 80 years, he was taken from his resting place for CT scan, which offers to solve the mystery of his life and death by creating a forensic reconstruction. So, after lying for 80 years in his tomb, he was taken from there, he was taken out from there for CT scan. So, to assess that what was the reason of his death. Tut's father or grandfather, Amenhotep III, was very powerful pharaoh who ruled over a period of 40 years. Tut's father was a powerful ruler, his grandfather was also a powerful ruler. His son Amenhotep IV thrived him and began the strangest period in the history of Egypt. So, after them, their son Amenhotep IV thrived on the throne and he began the strangest period. How? He promoted the worship of Aten. He changed his name to Akhenaten, meaning servant of Athens. He also moved the religious capital from Thebes to the new city of Akhenaten called Amarna. So he moved his city from from Thebes to Akhenaten, and he named which were called Amarna, and he attacked Amun, a god, and smashed his images and closed his temples. Another mysterious ruler succeeded him who died soon. Next, Tutankhamun, also known as Tut, sat on the throne and ruled for 9 years. He worshipped God Amun in the old ways. In the old manner, he worshipped God Amun, however, he died mysteriously. Or that Tutankhamun, he died mysteriously. मतलब किसी को भी पता नहीं था कि क्या वजह रही उसकी डेथ की. सबके लिए उसकी डेथ एक मिस्ट्री बन गई. When Tut's mummified body was discovered, he was laid with lots of gold, wealth, and everyday items like branch, razor, games, clothes, cases of food and wine. तो जब टुट की ममीफाइड बॉडी को डिस्कवर किया गया तो उनके पास क्या क्या सामान था. गोल्ड था, हर जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरत का सामान होता है, दैट वॉज विद हिम. Food was there. Carter discovered him after searching for many years. Carter, who was an archaeologist, he discovered him after searching for बहुत सालों तक खोज करने के बाद कार्टर को उनकी बॉडी जो है ममीफाइड ममी मिला था. After researching on the treasures, he decided to investigate his 3 nested coffins. उनके जो ट्रेजर्स को रिसर्च करने के बाद उन्होंने उनके साथ जो
3 कॉफिन्स और बने हुए थे, उन पे भी इन्वेस्टिगेट करने के बारे में सोचा। सम पार्ट्स ऑफ द ट्रुथ्स ट्रेजर्स इन द टूम वर ऑलरेडी, और ट्रुथ का जो भी ट्रेजर था वो पहले, उसका कुछ हिस्सा जो है पहले ही जो वो लूट लिया गया था। इट वॉज ऑलरेडी लूटेड। सो in Egypt there was a thinking about, they believed in life after death. So they mummified the body, and after mummifying it they put all the everyday items, जो भी ज़रूरत का सामान होता था वो सब जो मम्मी के पास रख दिया जाता था ताकि वो उसको यूज़ कर सके। तो ये थिंकिंग इजिप्शियंस की थी कि दे थिंक अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। तो इसलिए जो भी सामान, ऑर्नामेंट्स और जो डेली यूज़ करने वाली चीज़ें थी वो लोग मम्मी के साथ रख देते थे। His tomb was rock cut 26 feet underground, which had wall painting. इसका जो tomb था वो रॉक से बना हुआ और 26 feet underground इतना, which had वहाँ क्या थी, वॉल पेंटिंग्स थी ऑन द आउटर कॉफिन में। Tooth's face was gilded, और जो बाहर का जो आउटर कॉफिन था उसमें ऊपर क्या उसका जो फेस था टूथ का वो बना हुआ था रॉक के ऊपर। इन द फर्स्ट कॉफिन ही फाउंड द गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव्स, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर। जो पहला कॉफिन जब उन्होंने खोला, जो उनके आसपास 3 कॉफिन्स रखे हुए थे, तो उसमें उनको क्या मिली, माला मिली ऑलिव्स की, रोज़ पेटल्स की, कॉर्नफ्लावर्स की। इट शोड दैट ही वॉज बरीड। तो उससे ये पता चलता है कि जब उनको दफनाया गया तो उस वक्त क्या था, मार्च और अप्रैल का महीना था। कैसे? क्योंकि जो फ्लावर्स मार्च और अप्रैल के महीने में खिलते हैं वो उस वक्त उस कॉफिन के अंदर थे। द थर्ड एंड द फाइनल कॉफिन पुट कार्टर इनटू ट्रबल। जो तीसरा कॉफिन था उससे जो है कार्टन को बहुत प्रॉब्लम हुई। द रेजिन्स यूज टू सीमेंट टैट टू द बॉटम। जो रेजिन्स थे, जो रेजिन थे वो, इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्लू, इट इज़ यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स फॉर द मम्मी। दे यूज्ड इट, वो जो मम्मी के लिए जो भी उन्होंने ऑर्नामेंट्स बनाया उसको यूज़ किया। तो वो जो है वो उसके बॉटम में वो चिपक गया। बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफ़ी वॉज हार्डन्ड इनफ मेकिंग इट, और वो इतना हार्ड हो गया, वो जो उससे इतना ज़्यादा चिपक गया कि वो बिल्कुल निकल नहीं रहा था। ही पुट द कॉफिन इन द सन फॉर सेवरल आवर्स इन द होप फॉर द रेजिन टू लूजन अप, बट इट डिडंट वर्क। कार्टर ने जो है को कई घंटे कॉफिन को धूप में भी रखा, ये सोच के कि जो रेजिन है वो लूज़ हो जाएगा, वो जो ग्लूइड सब्सटेंस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइनली ही रिमूव द रेजिन्स विद द हेल्प ऑफ चिज़ल एंड हैमर, और बाद में हथौड़े की हेल्प लेके उन्होंने वो रेजिन को हटाया, उसको रिमूव किया। कार्टर फेल्ट ही डिड नॉट हैव एनी अदर चॉइस एज टू इफ़ ही hadn't cut the mummy from limb to limb। अब उनको लगा कि उसके लिए उनको जो मम्मी है उसको कट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई और तरीका नहीं था उस मम्मी को वहाँ से निकालने का। Thieves would have looted the gold. His men first removed his head। उन्होंने जो मम्मी है उसका पहले हेड निकाला, देन दे कट ऑफ, फिर उन्होंने हर जॉइंट से कट करके उसको बाहर निकाला। आफ्टर रिमूविंग द बॉडी पार्ट्स दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स एंड पुट इट एट द ओरिजिनल प्लेस। अब जो है जो उनके वर्कर्स हैं उन्होंने उनके टूट के बॉडी पार्ट्स कट करके वहाँ से निकाले और उनको बॉक्स, एक वुडन बॉक्स में, लकड़ी के बॉक्स में, उसमें रेत को बिछाकर रेत के ऊपर जो है एक एक करके उनके बॉडी पार्ट्स इस प्रॉपर तरीके से जैसे बॉडी में फिट थे उसी तरीके से उन्होंने भी उसके ऊपर लगा दिए। In 1968
द ममी वॉज एक्सरेड बाय एन एनाटॉमी प्रोफेसर। 1968 में उस ममी का एक्सरे लिया गया और उसमें पता चला, उसमें कुछ फैक्ट्स के बारे में पता चला, कुछ बातें पता चली कि जो उनकी चेस्ट की बोन थी और रिब्स की जो बोन्स थी वो मिसिंग थी, मतलब वो वहाँ नहीं थी। तो इससे पता चलता है कि समथिंग वुड हैड हैपन टू हिम, कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। लेटर ऑन January 5, 2009, Tut was taken for CT scan, which takes hundreds of X-rays and creates a three-dimensional image. बाद में January 5, 2009 में टुट को CT स्कैन के लिए ले जाया गया, जहाँ उनकी हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज हुए, उनका थ्री डायमेंशनल इमेज जो है वो निकाली गई। द नाइट of the scan, the workman carried his body from the tomb in a box. उस रात को उनकी जो बॉडी थी, वो जो काम करने वाले वर्कमैन थे, उसको लेकर वो बॉक्स में रख के लेकर गए। They climbed ramp and stairs and lifted it on a hydraulic trailer. वो उसको जो है एक स्टेयर्स से और उसको हाइड्रोलिक ट्रेलर की हेल्प से उसका स्कैनर को हेल्ड करके उनकी बॉडी का स्कैन किया गया। द स्कैनर स्टॉप्ड वर्किंग विद पॉज द प्रोसीजर, और बीच में ही वो स्कैनर जो है वो रुक गया, काम करना उसने बंद कर दिया। उस वजह से जो CT स्कैन का प्रोसीजर था वो रुक गया। आफ्टर यूजिंग अ पेयर ऑफ स्पेयर फैंस, कुछ स्पेयर पार्ट्स लगाने के बाद द स्कैन फाइनली डन, बाद में वो स्कैन हो पाया। आफ्टर 3 hours his body was taken back to his tomb where his body is resting in peace. So after 3 hours his scan was completed and again they put his body to his tomb where his body is resting in peace. और 3 hours के स्कैन के बाद जो टुट है उनकी बॉडी को फिर से उनके टूम में रख दिया गया, जहाँ वो अभी भी रेस्ट कर लिया, बिकॉज दैट ममी इज़ रेस्टिंग इन पीस। वो वहाँ पर अपने टूम में तब से वहीं है। सो हियर द चैप्टर एंड्स। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। थैंक्स फॉर टुडे।